Okay, get this. Imagine trying to create a digital identity for nearly 380 million people. I mean, that's more than the entire population of the United States. It sounds almost impossible, right? Well, that is the staggering scale of India's eShram card. It's this massive project designed to bring a huge part of the country's workforce, basically the people who've always been off the books, out of the shadows and into the system. So here's what we're going to cover. We'll kick things off with a problem, this massive invisible workforce. Then we'll dive into the eShram solution, figure out who can get a card, and see what kind of benefits you can actually unlock. And to wrap it all up, we'll take a hard look at the real-world impact so far and think about what this means for the future of work in India. All right, first things first. To really get why eShram even exists, you have to understand just how huge India's informal economy is. For decades, a massive chunk of the country's workers were, for all intents and purposes, completely invisible to the government. And the number is just staggering. 38 crore. That's 380 million people. We're talking about construction workers, street vendors, gig workers, people who, until very recently, had no formal work identity at all. This made it nearly impossible for the government to get any kind of social security or aid directly to them. You know, the real breaking point came during the COVID-19 lockdown in 2020. Millions of migrant workers were just stranded, and the government had to admit it had no idea who or where they were. The Supreme Court called this unpardonable apathy, and that sharp criticism really lit a fire to finally get a national database built. And that crisis is what led directly to the eShram portal. It was the government's huge, ambitious plan to fix this data black hole once and for all. So what is it exactly? Well, at its heart, eShram is a national database. The whole point is to register every single unorganized worker and give them a digital ID. Think of it like a key that unlocks all kinds of government welfare benefits. But here's the thing, this wasn't some brand new idea. A law was actually passed way back in 2008 saying a database like this was needed, but it just never really happened. It took the crisis in 2020 to create the push, the political will, that finally led to the portal's launch in August 2021. Okay, so who is this actually for? Well, the good news is the eligibility was designed to be as broad and inclusive as possible. The criteria are pretty straightforward. You need to be between 16 and 59 years old, and you have to work in the unorganized sector. Now, on the flip side, if you're already covered by formal Social Security, things like the Employees Provident Fund, or EPFO for salaried workers, or the pension system for government employees, or if you pay income tax, then you're not eligible. This is really just to make sure the system targets the folks who need a safety net the most. So let's say you're eligible, what happens next? Let's take a look at how you get the card and, more importantly, what it actually does for you. The whole process was really designed to be simple. It's totally free, and you can do it all online. You basically just need your Aadhaar number, a mobile phone that's linked to it, and your bank details. 4 easy steps, and boom, you can download your card right away. And that card comes with something called a Universal Account Number, or UAN. This 12-digit number becomes your permanent portable ID for life. It doesn't matter if you're a construction worker from Bihar who's working in Maharashtra, this number sticks with you, and it's valid everywhere in the country. And this is where it gets really powerful. The eShram portal basically becomes a one-stop solution. Just look at these numbers. Over 23 crore people registered are linked to the One Nation, One Ration Card scheme. Over 15 crore are linked to Ayushman Bharat for health coverage. It's like a single gateway to a ton of essential services. But look, creating the world's largest database of its kind is one thing. Making it work perfectly on the ground, that's a whole other story. So let's get into a bit of a reality check on the impact so far and the very real challenges they're facing. First, let's talk about the success. As of early 2024, more than 31 crore workers have been registered. Just in terms of gathering data, this is an incredible achievement. It's built a foundational layer of information where before there was pretty much nothing. And when you dig into that data, you find something really interesting. A majority of the people who signed up, over 53%,
are women. Now, this is a huge deal because female workers in the informal sector are often the most invisible and the most vulnerable, and this shows the scheme is actually reaching them. If we look at the map, some states have seen massive numbers of people sign up. Uttar Pradesh alone makes up more than a quarter of all registrations, and it's followed by other big states like Bihar and West Bengal. This really highlights where the highest concentrations of these unorganized workers are. But, and this is a big but, just having a card doesn't automatically mean you're getting the benefits. The hurdles are pretty significant. A lot of workers on the ground still have no idea this scheme even exists. For those who do, there's the digital divide. I mean, you can't register online if you don't have a smartphone and internet. And a huge early problem was that for nearly 3/4 of people who signed up, their bank accounts weren't linked to Aadhaar, which made direct payments impossible. This all means that the core promise, a portable nationwide safety net for migrant workers, is still very much a work in progress. So they've built this massive database, and they're facing all these challenges. What does the future hold? Where does a project of this scale even go from here? Well, the long-term vision is even more ambitious. They're talking about something called a universal social security account. The idea is to merge this new eShram database with all the existing formal systems for salaried employees, their pension funds, their insurance funds, and create one single lifelong social security identity for every worker in India, no matter what their job is, a truly universal system. And that really brings us to the core question, doesn't it? Building a database of over 31 core people is a monumental technical achievement. There's no question about that. But is it the foundation for real, lasting social change for India's most vulnerable workers? Or does it risk becoming just a massive data collection exercise? The answer, isn't in the data that's already been collected, but in what India decides to build on top of it. सोचिए, भारत में करोड़ों लोग जो हमारी अर्थव्यवस्था की असल रीढ़ हैं, लेकिन सरकारी कागजों पर मानो उनका कोई वजूद ही नहीं था। आज हम बात करेंगे ई-श्रम की। ये एक ऐसी जबरदस्त पहल है जो इन करोड़ों लोगों को एक डिजिटल पहचान दे रही है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे सफर को। तो आखिर ई-श्रम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस सच्चाई को देखना होगा जो अब तक कह सकते हैं एक तरह से छिपी हुई थी। 38 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश की कुल वर्कफोर्स का सोचिए करीब 93% हिस्सा है। ये वो लोग हैं जो हर रोज हमारे देश को चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, खेतों में पसीना बहा रहे हैं, पर इनकी मेहनत को अक्सर कोई पहचान ही नहीं मिल पाती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये श्रमिक जो हमारे समाज का इतना बड़ा हिस्सा हैं, वो एक तरह से इनविजिबल थे, अदृश्य, मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स में उनका कोई वजूद ही नहीं था। और इसका नतीजा क्या हुआ? ना कोई फॉर्मल पहचान, ना कोई सरकारी फायदे जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, और सरकार से सीधी मदद पाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। और इस अदृश्य वर्कफोर्स की सच्चाई सबसे दर्दनाक तरीके से सामने आई कोविड लॉकडाउन के वक्त। वो तस्वीरें हम सबने देखी, लाखों मजदूर पैदल अपने घरों को लौट रहे थे, और तब पता चला कि सरकार के पास तो उनका कोई डेटा ही नहीं था कि उन तक मदद पहुंचाई कैसे जाए। मामला इतना गंभीर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और एक नेशनल डेटाबेस बनाने का ऑर्डर दिया गया। तो डेटा और पहचान की इसी बहुत बड़ी कमी को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक सीधा समाधान लाया गया, और उसका नाम है ई-श्रम। तो ये ई-श्रम है क्या आखिर? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा डेटाबेस जहां भारत के सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि सरकारी मदद सीधे उन तक पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। और इस पूरे सिस्टम की जो जान है ना, वो है यूएएन, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसे एक वर्कर का परमानेंट डिजिटल आई कार्ड समझ लीजिए। ये जो 12 डिजिट का नंबर है, एक बार मिल गया तो बस पूरी जिंदगी उनके साथ रहेगा, फिर चाहे वो देश के किसी भी कोने में जाके काम करे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही आसान और एकदम फ्री रखा गया है, ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। कोई भी या तो खुद ऑनलाइन कर सकता है या फिर पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्टर करवा सकता है।
चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो नई डिजिटल पहचान है ये वर्कर्स के लिए अपने साथ क्या क्या फायदे लेकर आती है। रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है एक सुरक्षा का एहसास। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। अब सोचिए किसी मुश्किल घड़ी में ये रकम एक परिवार के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकती है। और बात सिर्फ बीमा तक ही नहीं रुकती, ये पोर्टल एक तरह से 14 से भी ज्यादा जरूरी सरकारी योजनाओं का एक सिंगल गेटवे बन जाता है। मतलब आयुष्मान भारत का हेल्थ इंश्योरेंस हो, राशन हो, पेंशन हो या मनरेगा, सब कुछ अब इसी एक जगह से जुड़ गया है। देखिए, कोई भी स्कीम जब इतने बड़े स्केल पर लागू होती है तो उसमें कुछ बड़ी कामयाबियां भी होती हैं और कुछ जमीनी चुनौतियां भी। तो चलिए दोनों ही पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। जनवरी 2026 तक का आंकड़ा देखें तो 31 करोड़ 48 लाख इतने वर्कर्स इस पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा डेटाबेस। अंदाजा लगाइए, ये नंबर अमेरिका की पूरी आबादी के लगभग बराबर है। और एक और बहुत ही शानदार बात सामने आई है, रजिस्टर्ड लोगों में 53% से ज्यादा महिलाएं हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि महिला श्रमिक सरकारी स्कीमों के दायरे से बाहर रह जाती हैं, तो ये उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। तो ये नंबर्स तो वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो जाना ही काफी है? क्या इसका फायदा सच में लोगों तक पहुंच भी रहा है? और यहीं पर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग दिखती है। पहली मुश्किल है डिजिटल डिवाइड, मतलब आज भी बहुत से वर्कर्स के पास स्मार्टफोन या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है। फिर एक और बड़ी दिक्कत आई, शुरू में करीब 75% लोगों के बैंक अकाउंट ही आधार से लिंक नहीं थे। अब ऐसे में सीधे पैसे कैसे भेजे जाएं? और हाँ, वो जो वादा था कि प्रवासी मजदूर कहीं भी हों उन्हें फायदे मिलेंगे, वो भी अभी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाया है। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद ई श्रम का भविष्य क्या है, आगे का रास्ता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट ये हो रहा है कि ये स्कीम अब काम के नए तरीकों को भी अपने दायरे में ला रही है। अब जोमैटो, स्विगी, उबर जैसी कंपनियों के जो गिग वर्कर्स हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जा रहा है। ये वाकई एक अच्छा कदम है। असल में सरकार का एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। वो सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, जिसे लेबर स्टैक कहा जा रहा है। और इसका फाइनल गोल क्या है? हर वर्कर के लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट बनाना, मतलब उनके सारे फायदे, सारा हिसाब किताब सब एक ही जगह पर। तो देखिए, ई श्रम ने 31 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक डेटाबेस बनाकर एक ऐतिहासिक काम तो जरूर किया है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या ये पहल सिर्फ डेटा का एक बहुत बड़ा कलेक्शन बनकर रह जाएगी, या फिर ये वाकई डेटा से सम्मान तक का वो पुल बना पाएगी जिसकी करोड़ों श्रमिकों को जरूरत है? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस गहन विश्लेषण के एक नए सत्र में सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो कुछ ऐसा है जो सीधे तौर पर हमारे देश की बुनियाद से जुड़ा है। बिल्कुल, मतलब अर्थव्यवस्था के उस हिस्से से जिसे अक्सर हम लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में अनदेखा कर देते हैं। आज हम भारत के ई श्रम पोर्टल के उस विशाल डेटाबेस का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो अब पूरी दुनिया में असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों का सबसे बड़ा डेटाबेस बन चुका है। हाँ, और देखिए, आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार बहुत ही ठोस है। एकदम। हम भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों, FAQ और जो फरवरी 2026 की ताजा PIB रिलीज है ना, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही वो डीप रिसर्च रिपोर्ट भी तो है। सही कहा, विशेष रूप से टॉप मैनेजमेंट के लिए तैयार की गई एक विस्तृत डीप रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर हम इस विषय की तह तक जाएंगे, क्योंकि इन दस्तावेजों में सिर्फ नीतियां नहीं है, बल्कि जमीन पर हो रहे बदलावों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये विषय इतना प्रासंगिक क्यों है? जाहिर सी बात है। तो इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपा है। ये उन 38 करोड़ लोगों की कहानी है जो हमारे घर बनाते हैं, हमारे लिए खाना डिलीवर करते हैं, हाँ, हमारी सड़कें बनाते हैं, घरों की सफाई करते हैं और सच कहें तो पूरी शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि लंबे समय तक सरकारी रिकॉर्ड्स की दुनिया में ये करोड़ों लोग लगभग अदृश्य थे। बिल्कुल अदृश्य।
मतलब सरकारी फाइलों में इनका कोई नामो निशान नहीं था। और इस अदृश्यता की सबसे भयानक कीमत पूरे देश ने मार्च 2020 में देखी थी, जब कोविड-19 महामारी आई थी। हाँ, अचानक से देशव्यापी लॉकडाउन लग गया, शहरों में काम रातों रात बंद हो गया। वो तस्वीरें आज भी बहुत डरावनी लगती हैं। लाखों प्रवासी मजदूरों को कोई साधन न मिलने पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव की ओर लौटना पड़ा था। और उस समय प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं थी कि काम रुक गया है, तो फिर क्या थी? चुनौती ये थी कि सरकार के पास कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा ही नहीं था। मतलब पता ही नहीं था कि मजदूर कौन है। हाँ, वो कहाँ से आए हैं, किन शहरों में फंसे हैं और उन तक राहत कैसे पहुंचाई जाए। कोई भी सभ्य समाज उस स्थिति को भूल नहीं सकता। इसी स्थिति का संज्ञान लेते हुए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। हाँ, अक्षम्य उदासीनता कहा था इसे। सही, और उसी राष्ट्रीय संकट ने एक ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। सरकार को ये एहसास हुआ कि कल्याणकारी योजनाएं तब तक हवा हवाई रहेंगी जब तक लाभार्थियों की कोई ठोस पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझ गए हैं। 26 अगस्त 2021 को जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था तो इसकी शुरुआत एक प्रयोग के तौर पर ही हुई थी। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा था, लेकिन ताजा आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी 2026 तक इस पोर्टल पर 31.48 करोड़ वर्कर रजिस्टर हो चुके हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। जरा संख्या की कल्पना कीजिए, ये आंकड़ा दुनिया के कई बड़े विकसित देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डेटाबेस के डेमोग्राफिक्स बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इन 31 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कामगारों में 53.68% महिलाएं हैं। वाह, ये तो आधे से भी ज्यादा है। हाँ, भारत जैसे देश में जहां फॉर्मल सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी अक्सर एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, वहां असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में रजिस्टर करना एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के काम को घर के काम का हिस्सा मानकर आर्थिक गणना से बाहर ही कर दिया जाता है। बिल्कुल, और रिपोर्ट में आय को लेकर भी एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। लगभग 94.3% रजिस्टर्ड लोगों ने अपनी आय बहुत कम बताई है। सही, उनकी मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। यह आंकड़ा इस योजना की दिशा तय करता है। एकदम, ये साबित करता है कि ई श्रम योजना अपने लक्ष्य से भटकी नहीं है। इसका उद्देश्य ही उन लोगों तक पहुंचना था जो आर्थिक पिरामिड में सबसे नीचे हैं। और ये डेटा पुष्टि करता है कि योजना बिल्कुल सही और सबसे जरूरतमंद लो इनकम वर्ग तक ही पहुंची है। और अगर हम काम के क्षेत्रों के आधार पर इसका विश्लेषण करें तो सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का है, जो करीब 52.1% है। हाँ, इसके बाद निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन और फिर घरेलू कामगार आते हैं। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। वहाँ कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? लगभग 27%, यानी करीब 8.38 करोड़ रजिस्ट्रेशन सिर्फ यूपी से हैं। भारी पलायन एक बड़ा कारण है इसका। बिल्कुल, यूपी की बड़ी आबादी और वहां से होने वाला माइग्रेशन इसका मुख्य कारण है। इतने बड़े पैमाने पर और इतने कम समय में रजिस्ट्रेशन होना सचमुच एक प्रशासनिक उपलब्धि है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। नियम जानबूझकर बहुत आसान रखे गए हैं ताकि कोई कागजी उलझनों में ना फंसे। तो पात्रता क्या है इसकी? मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसे क्या चाहिए? कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच है वो इसके लिए पात्र है। मतलब जो देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन है। हाँ, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, खेतों में काम करने वाला मजदूर हो या घरों में काम करने वाली मेड। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी तो हैं जो ये तय करती हैं कि व्यक्ति असंगठित क्षेत्र का ही हिस्सा है। मुख्य शर्त सिर्फ इतनी है कि वो व्यक्ति ईपीएफओ या ईएसआईसी का सदस्य न हो, मतलब फॉर्मल सेक्टर का कर्मचारी ना हो। एकदम सही। और वो इनकम टैक्स देने के दायरे में भी नहीं आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन तो पूरी तरह मुफ्त है ना? बिल्कुल मुफ्त है, कोई लंबी कागजी कार्रवाई नहीं है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए: आधार नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और एक बचत बैंक खाता। और खाते का IFSC कोड होना जरूरी है, बस। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद हर वर्कर को 12 अंकों का एक यूएएन दिया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। हाँ, अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो ये यूएएन किसी मजदूर के लिए जीवन भर का एक वीआईपी पास है। ये कभी एक्सपायर नहीं होता और इसे हर साल रिन्यू कराने की कोई झंझट भी नहीं होती। ये वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर काम करता है। इस वीआईपी पास वाली बात को अगर हम जमीन पर उतार कर देखें तो मान लीजिए कि बिहार का कोई राजमिस्त्री काम की तलाश में महाराष्ट्र के पुणे जाता है। पहले के समय में तो उसे बहुत दिक्कत होती थी, नया रजिस्टर, नया ठेकेदार। हाँ, अपनी पहचान साबित करना मुश्किल होता था। लेकिन अब इस यूएएन कार्ड के कारण उसका डेटा और उसकी पहचान उसके साथ साथ यात्रा करती है। उसकी पहचान अब एक राष्ट्रीय पहचान बन गई है। बिल्कुल, पहचान मिलना सम्मान की बात है, लेकिन श्रोता शायद ये सोच रहे हों कि इस कार्ड का ठोस और आर्थिक फायदा क्या है।
रोजमर्रा की चुनौतियां कैसे हल होती हैं? सबसे पहला और तत्काल फायदा जो जुड़ते ही मिलता है वो है बीमा। दुर्घटना बीमा। हाँ, रजिस्ट्रेशन होते ही वर्कर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हिस्सा बन जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। बिल्कुल। किसी हादसे में मृत्यु होने या पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए। इस तरह के बीमा के लिए तो निजी कंपनियों में काफी प्रीमियम देना पड़ता, लेकिन यहाँ प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए प्रति वर्ष है। और पहला साल तो मुफ्त था शायद। हाँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि 8.46 करोड़ लोग इस बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं। पर बात सिर्फ बीमा पर आकर नहीं रुकती। बिल्कुल नहीं। 21 अक्टूबर 2024 को सरकार ने एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। इस श्रम को एक वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया। हाँ, अब इस अकेले डेटाबेस को 14 अलग अलग प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के साथ जोड़ दिया गया है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर गरीब मजदूरों को अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब वो झंझट खत्म। अगर हम प्रमुख योजनाओं की बात करें तो सबसे ऊपर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है। इसका फायदा तो 23.89 करोड़ लोगों को मिल रहा है। वो देश में कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना का भी इंटीग्रेशन हुआ है, जिसमें हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और अब इसके 15.10 करोड़ लाभार्थियों को ई श्रम के जरिए सीधे मैप कर लिया गया है। इसके अलावा मनरेगा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना भी है। हाँ, मानधन योजना एक स्वैच्छिक पेंशन स्कीम है जिसमें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है, खास तौर पर गिग इकोनॉमी के लिए, जो आज हमारे शहरों का नया चेहरा बन गई है? गिग वर्कर्स का मुद्दा बहुत अहम है। जोमैटो, स्विगी, उबर और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवर्स, लंबे समय तक तो इन्हें मजदूर माना ही नहीं जाता था। इन्हें महज पार्टनर कहकर सामाजिक सुरक्षा से दूर रखा गया। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल। भारतीय श्रम सुधारों के इतिहास में गिग वर्कर्स को ई श्रम के दायरे में लाना एक युगांतरकारी कदम है। 12 दिसंबर 2024 को प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर मॉड्यूल लॉन्च किया गया और अब तक 12 बड़ी कंपनियां इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। वे बैकएंड से अपने वर्कर्स का डेटा दर्ज करा रही हैं ताकि उन्हें फॉर्मल छाती के नीचे लाया जा सके। गिग वर्कर्स के लिए साल 2025-26 का केंद्रीय बजट भी काफी अहम रहा है। बहुत अहम। श्रम मंत्रालय को 32,646 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 80% की छलांग है। और सबसे प्रमुख घोषणा तो स्वास्थ्य बीमा को लेकर थी। हाँ, सभी रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा नीतिगत स्तर पर जो ड्राफ्ट रूल्स दिसंबर 2025 में पेश किए गए हैं, वो भी काफी प्रभावशाली हैं। उन नए नियमों के अनुसार डिजिटल एग्रीगेटर कंपनियों को अब अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। ये फंड गिग वर्कर्स के स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा और भविष्य निधि के लिए इस्तेमाल होगा। कंपनियां अक्सर इसका विरोध करती हैं कि लागत बढ़ेगी, लेकिन कामगारों के लिए ये बेहद जरूरी कदम है। लेकिन इस ड्राफ्ट रूल में एक व्यावहारिक पेच भी तो नजर आता है। हाँ, वो काम के दिनों की शर्त वाला पेंच। रिपोर्ट बताती है कि इस फंड का लाभ लेने के लिए एक गिग वर्कर को किसी एक प्लेटफॉर्म के साथ साल भर में कम से कम 90 दिन काम करना होगा। और अगर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है तो कुल मिलाकर 120 दिन का लॉगिन जरूरी होगा। हम जानते हैं कि कई गिग वर्कर्स दिन भर में 3 अलग अलग ऐप्स पर स्विच करते रहते हैं ताकि ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकें। बेदिन की शर्त पूरी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इससे तो फायदे से बाहर हो जाएंगे। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जो नीति आयोग के आंकड़ों से भी स्पष्ट है। कौन से आंकड़े? आयोग का अनुमान है कि 2029-30 तक भारत में गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 2.35 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अगस्त 2025 तक के ई श्रम रजिस्ट्रेशन देखें तो इस नए मॉड्यूल पर सिर्फ 3.37 लाख गिग वर्कर्स ही रजिस्टर हो पाए हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारे पास नीतियां हैं, बजट है, नियम बन रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कामगारों को सिस्टम में लाने की जो रफ्तार है वो अभी भी बहुत धीमी है। कागजी योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच का ये अंतर हमेशा से हमारी व्यवस्था का कमजोर पहलू रहा है। बिल्कुल। 30 करोड़ का डेटाबेस तैयार करना शानदार बात है, लेकिन क्या पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान तक फायदा पहुंच पा रहा है? यहीं पर एक बड़ी तकनीकी अड़चन सामने आई थी। शुरुआत में जब लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो पता चला कि एक बहुत बड़े वर्ग का बैंक खाता आधार से जुड़ा ही नहीं है। रिपोर्ट का आंकड़ा तो और भी गंभीर है। शुरुआत में लगभग 47.78% रजिस्टर्ड लोगों के बैंक खाते लिंक नहीं थे, यानी करीब 3.5 करोड़ लोग। इस तकनीकी खामी का असर तो बहुत बड़ा होता। अगर बैंक खाता लिंक नहीं है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसे अटक जाएगा। बिल्कुल। सरकार ने पोर्टल ही इसलिए बनाया था कि आपदा के समय सीधे मजदूरों के खाते में मदद भेजी जा सके। इसलिए बाद में श्रम मंत्रालय को बैंकों के साथ युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा, ताकि खातों की केवाईसी और लिंकिंग पूरी की जा सके। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड और जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। आज भी दूर दराज के इलाकों में या छोटे शहरों में घरों में काम करने वाली महिलाओं को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई कार्ड है। और जो खुद रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं उनके लिए 400 से ज्यादा व्यवसायों की सूची में से अपना सही पेशा चुनना बहुत मुश्किल काम है। और इस डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में भाषा की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
लॉन्च के बाद 3.5 साल तक पोर्टल सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में था। भाषाई विविधता वाले देश में एक तमिल या उड़िया मजदूर के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। हालांकि जनवरी 2025 में सरकार ने भाषिनी AI को जोड़ा, जिससे 22 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिला। ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन इसे 3.5 साल बाद लाया गया, जो कि शुरुआत में ही होना चाहिए था। एक और बहुत ही जमीनी दिक्कत माइग्रेंट वर्कर्स के साथ आती है, जिसे नीतियां बनाते समय नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो मोबाइल सिम बदलने वाली समस्या। हाँ, ये मजदूर अक्सर सस्ते रिचार्ज के चक्कर में सिम बदलते रहते हैं। नया सिम लिया तो पुराना नंबर बंद हो गया। अब समस्या ये है कि पोर्टल पर किसी भी बदलाव के लिए जो OTP आता है वो उसी पुराने नंबर पर जाता है। इस एक छोटी सी बात की वजह से लाखों वर्कर अनजाने में ही अपने ई-श्रम अकाउंट से बाहर हो जाते हैं। ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसके साथ ही एक अड़चन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की भी है। हाँ, क्योंकि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है। कई राज्यों के पास अपने अलग मजदूर कल्याण बोर्ड और पुरानी डेटाबेस हैं। इन अलग अलग डेटाबेस का ई-श्रम के केंद्रीय सर्वर के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग अभी भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाया है। बिल्कुल। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि इस पूरी कवायद का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या भविष्य का कोई बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है? भविष्य का रोड मैप बहुत ही महत्वाकांक्षी है। अक्टूबर 2025 में सरकार ने श्रम शक्ति नीति 2025 का जो नया ड्राफ्ट पेश किया है, उसमें इस विजन की झलक मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव क्या है? यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट यानी USSSA का निर्माण करना। तो क्या आने वाले समय में ये जो अलग अलग कार्ड और संस्थाएं हैं, उनका वजूद खत्म हो जाएगा? और का विजन ये है कि आने वाले सालों में EPFO, ESIC, आयुष्मान भारत और ई-श्रम, इन सभी को मिलाकर एक सिंगल लेबर स्टैक तैयार किया जाएगा। जैसे UPI ने पेमेंट्स में क्रांति लाई, वैसे ही ये लेबर स्टैक सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करेगा। सही कहा। भारत के हर कामगार के पास जीवन भर के लिए एक ही यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट होगा, जिसमें उसकी नौकरी, आय और सभी सुरक्षा योजनाओं का पूरा ब्यौरा एक ही जगह दर्ज होगा। ये विजन तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है। अगर हम आज के इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये बात स्पष्ट है कि 31 करोड़ मजदूरों का डेटाबेस तैयार कर लेना प्रशासन के स्तर पर एक बहुत बड़ी छलांग है। पहली बार उनके पास एक पुख्ता राष्ट्रीय पहचान है। लेकिन डेटाबेस में सिर्फ नाम दर्ज होने और उस इंसान तक असली आर्थिक सुरक्षा पहुंचने के बीच अभी भी एक लंबी यात्रा बाकी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही नया और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। वो क्या? ये सच है कि तकनीक ने इन कामगारों को डिजिटल पहचान देकर सिस्टम के नक्शे पर ला दिया है, लेकिन जब राज्य के पास इतने विशाल डेटा का खजाना आ जाता है कि मजदूर कहाँ काम कर रहा है, कब पलायन कर रहा है, उसकी आय क्या है, तो ये डेटा प्राइवेसी और स्टेट सर्विलांस के गंभीर सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल। क्या भविष्य में इस बात की गारंटी है कि इतने संवेदनशील डेटा का कमर्शियल या किसी और तरह से दुरुपयोग नहीं होगा? ये एक बहुत ही प्रासंगिक कोण है। डिजिटल पहचान कल्याण का बड़ा हथियार है, पर ये एक परमानेंट डिजिटल फुटप्रिंट भी बन जाता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। श्रोताओं को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हम एक ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं जहां पहचान ही सब कुछ है, या हमें निजता को बचाने के लिए भी कड़े नियम बनाने होंगे। एकदम सही। हम चाहेंगे कि इस विस्तृत चर्चा को सुनने वाले सभी लोग इस विषय पर खुद और गहराई से सोचें। जब तक जमीनी स्तर पर हर मजदूर को उसके अधिकार का असली पैसा और सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक ये डिजिटल क्रांति अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। अगली बार जब आपके घर कोई सामान डिलीवर करने आए या सड़क किनारे आप किसी को काम करते देखें, तो सोचिएगा कि डिजिटल दुनिया के उस बड़े से लेजर में उनकी जगह कहाँ है और क्या वो जगह सुरक्षित है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही ऐसे ही किसी नए और विचारोत्तेजक विषय के साथ फिर लौटेंगे।